ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور چینی نایاب ہو گیا۔ خورونوش دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ مہنگائی کے کاروبار جاری، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء نایاب ہو گئیں۔ ملتان کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کا 15 کلو والا تھیلا 300 روپے مہنگا ہو کر 1400 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ چینی بھی 5 روپے فی کلو مہنگی ہو کر 145 روپے فی کلو ہو گئی۔ آٹا اور چینی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کی پہنچ سے دور ہے۔ یہ تھوڑا سا سامان لیے ہے، 850 روپے کا سامان بنا ہے یہ، اور ہمارے بڑے جتنے سربراہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ امیر امیر ہو جا رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، لہذا حکومت چاہیے کہ وہ کچھ عوام کے لیے کچھ ہو دے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور چینی نایاب ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کا فی کلو ریٹ 145 روپے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر 155 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ آٹے کی عدم دستیابی سے بھی شہری پریشان ہیں۔ یہاں لینے آ جاؤ اسٹور پہ، چینی لے لو تو دال نہیں ہے، دال لے لو تو گھی نہیں ہے، یہاں پہ بہت مہنگائی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ غریب عوام کو یوٹیلیٹی سٹور پر کوئی ریلیف نہیں مل رہا، انتظامیہ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ عام مارکیٹ میں قیمتوں پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی نظر نہیں آتی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فراز رمضان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری نرخوں اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ملتان میں سبزیوں پھلوں کے سرکاری اور مارکیٹس نرخوں میں واضح فرق برقرار، دکانداروں نے من مانے ریٹس مقرر کر لیے۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 560 اور لہسن 340 روپے فی کلو مقرر، جبکہ مارکیٹس میں ادرک 700 اور لہسن 450 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 90، پیاز 84، ٹماٹر 120 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ بھنڈی، شملہ مرچ اور بند گوبھی سرکاری ریٹ لسٹ میں 110 روپے فی کلو ہے۔ مارکیٹ میں بھنڈی 150، شملہ مرچ اور بند گوبھی 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اروی 200 اور دیسی لیمو 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں، اور سندھڑی آم 250 روپے، انور رٹول 300 روپے فی کلو ہیں۔ آلو بخارا 500 اور انگور 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ خوبانی 300، پپیتا 290 اور سیب 400 روپے فی کلو ہیں۔ انار 600، جامن 300 اور گرما 250 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان میں پل برار کا دو طرفہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک سگنل روڈ پر آنے سے حادثات کی شرح بڑھنے لگی۔ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کا بھی فقدان، مزید جانتے ہیں اون آباد سے۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں اس وقت ہم پل برارہ روڈ پر موجود ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ جو ہے ایک سائڈ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ساری ٹریفک جو ہے وہ ون وے پر آ چکی ہے، اور رات کے وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹریفک ون وے آنے کے بعد جو ہے یہاں اسٹریٹ لائٹس موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پل برارہ جو یہ روڈ ہے یہاں پر جو ہے اپنا چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور علاقہ مکین کافی غیر محفوظ جو ہے اس حوالے سے فیل کرتے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے جلد سے جلد ملتان شہر میں، اگر ہم بات کریں میونسپل کارپوریشن کی غفلت کے باعث شہر کی کئی اہم شرائح جو ہے وہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا فقدان ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو وہیں پر ہی جو پل برارہ روڈ ہے یہاں پر بھی جو ہے ایک طرف جہاں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ساری ٹریفک سنگل وے پر آ چکی ہے، تو وہیں پر ہی جو ہے ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ سنگل وے پر ٹریفک آنے کے بعد جو ہے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا فقدان ہونے کی وجہ سے رات کے وقت جو ہے ایکسیڈنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انتظامیہ جو ہے خاطر خواہ اقدامات کرتے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی بھی میرے کیمرہ مین نصیب آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سنگل روڈ پر جو ہے 2 وے ٹریفک چل رہی ہے، اور اوپر سے اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ایکسیڈنٹس بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے شہری بھی رات کے وقت غیر محفوظ بھی ہے، کیونکہ علاقہ مکین جو ہے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو پل برارہ روڈ ہے جلد سے جلد جو ہے اسے تعمیر کیا جائے، تاکہ جو سنگل وے پر ساری ٹریفک آ چکی ہے لوڈ کم ہو، اور ایکسیڈنٹ اور ٹریفک جیم کی شرح میں جو مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں بھی کمی ہو، اور علاقہ مکین جو ہے رات کے وقت جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، علاقہ مکین غیر محفوظ ہیں، تو رات کے وقت اسٹریٹ لائٹس لگنے سے جو ہے علاقہ مکین جو ہے یہاں پر کافی سیف فیل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی کمی آئے گی، اور روڈ بننے سے جو ایکسیڈنٹس کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ٹریفک جیم کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا۔ جی شکریہ اون عباس۔ ڈیرہ غازی خان میں خسرہ کے کاروبار جاری، معصوم بچے ہوئے شکار۔ رواں سال ضلع بھر میں 519 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے،
CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 खसरा के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डेरा गाजी खान में खसरा आउट ऑफ कंट्रोल। CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी का कहना था कि जिला भर में रवां साल खसरा के 115 कंफर्म जबकि 519 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर खसरा के 2 से 3 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डीजी खां में 519 जो है ना सस्पेक्टेड केसेस हैं और डीजी खां की 4 तहसीलें हैं। उन 4 तहसीलों में सबसे ज़्यादा खसरा जो स्प्रेड कर रहा है वो अर्बन चुरट्टा हमारी एक यूसी है जो डीजी खां की यूसी है, तो वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। और 519 के अगेंस्ट जो कन्फर्म केसेस हैं वो 115 कन्फर्म केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट डीजी खां में। CEO हेल्थ का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि सबसे ज्यादा यूसी चुरहट्टा से खतरा के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले जो रेशियो थी 50+ केसेस आ रहे थे। जैसे हमने अपनी सर्विलेंस टीम को बूस्ट अप किया है, टीमें बनाई हैं रैपिड रिस्पांस टीम के हवाले से, तो तब से ऑनवर्ड जो है ना 2 से 3 पेशेंट डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिशन की सूरत हाल है वो टीचिंग हॉस्पिटल और THQ कोटछुटा और तौसा में उनको डेली बेसिस पे हमारी टीम जो है ना मॉनिटर भी कर रही है, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। मोप अप एक्टिविटी 519 केसेस की हो चुकी है। CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस का कहना है कि खसरा की वबा पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत पूरी तरह मुतहर्रिक है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। रोजान में कच्चा मड मोहम्मद शाह के मुकाम पर दरियाई सिंध तबाही मचाने लगा। दरियाई सिंध में तूफ़ानी के बायस दरियाई कटाव का अमल तेजी से जारी है। हालिया मानसून बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया में तूफ़ानी की वजह से रुझान में कटाव का अमल तेजी से जारी है। दरिया किनारे कच्चा के इलाके में काश्त, कपास और मूंगी की फसलें दरियाबुर्द हो रही हैं। दरियाई कटाव की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। कच्चा चेन से हुकूमत पुल बनाने से फसलें सारे जमीन कटाव जारी है। सारे फसलें तबाह थी, घर भी ढह गए, सारे कुछ ढह गए, सर ऐसा कुछ नहीं बचा। फिर क्या हुकूमत से सर ये पीले सर गुजारिश करें। दरियाए सिंध में पानी की सतह आए रोज बुलंद होती जा रही है, जिसकी वजह से दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता कच्चे के इलाके में फैलता जा रहा है, जो किसी भी वक्त मकामी आबादी को अपनी लपेट में ले सकता है। अगर बर वक्त इसका सदबाब न किया गया तो कच्चा मड मोहम्मद शाह में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। हासिलपुर में महकमा नहर की गफलत या फिर मुबैना नाअहली बासर जिम्मेदार नहर अजीम मौजा हासिलपुर से मुबैना पानी चोरी में मसरूफ। पानी न मिलने से गरीब किसानों की जमीनें बंजर होने लगी। हासिलपुर में नहर अजीम टेल खाल से बासर जिम्मेदार अरसादराज से मुबैना पानी चोरी में मसरूफ। नहरी पानी ना मिलने से गरीब काश्तकारों की जमीनें बंजर होने लगी। महकमा नहर के अफसरान ने तहरीरी दरखास्तों पर मौका भी देखा, मगर वो बासर जिम्मेदारों के सामने बेबस नजर आते हैं। गरीब काश्तकारों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहना था कि पानी चोरी करने वाले जिम्मेदार बासर हैं। तहरीरी दरखास्त और मौका देखने के बावजूद महकमा नहर के अफसरान कार्रवाई से गुरेजा हैं। पानी साडा इकबाल शाह चोरी कर रही है, मोगे सड़ रही है और खाल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨੱਕੇ ਪਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਰਕਬਾ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਚੌਥੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ गए हैं, पेशी तो होते आ गया, ਸਾਨੂੰ बजा छड़ देन। दूसरी तरफ डिप्टी कलेक्टर सईद अख्तर ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि उन्होंने मौका विजिट करके पाइप उखाड़ने के अहकामात जारी कर दिए हैं। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्थे इकबाल शाह ने मोगे पूरे होया नहर अजीम विच वो पानी चोरी करता है और खाल दे गैर कानूनी काम करता है, गैर कानूनी। इलाका के काश्तकारों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज, हासिलपुर। मुल्तान में सराफा बाजार के ताजिर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्तान में सराफा बाजार के ताजिर जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज वाइस चेयरमैन सराफा एसोसिएशन शेख खुरम शहजाद की क़यादत में किया गया। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शेख खुरम शहजाद का कहना था कि 4 साल पहले वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट तारीफ करवाया गया। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूसों के हवाले से सराफा बाजार के तरपाल हटा दी जाती हैं और बाद में लगा दी जाती हैं। इस दफा अभी तक तरपालें नहीं लगाई गईं, जिससे धूप दुकानों के काउंटर तक आती है। और ये आप देख रहे हैं, ये दुकानों के ऊपर जो लगे हुए हैं ये उतार के ले गए थे हमारे। उसके बाद उन्होंने हमें सिर्फ तंबू लगा के दिए थे। वो उन्होंने कहा था ये 21 रमज़ान को और 9-10 मुहर्रम के हवाले से ये उतारे जाएंगे और उसके बाद वो दोबारा खुद लगा के जाते थे। मगर इस साल वो
उतार के ले गए हैं और अभी तक लगाने का नाम नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया फौरी तौर पर वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत रफा बाजार में तरपाले लगाए, काउंटर्स पर गोल्ड डिस्प्ले किया होता है, धूप से गोल्ड काला हो जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना है कि सारा दिन यहाँ पे हमारे काउंटरों पे हमारे डिस्प्ले पे धूप आती है, जिसकी वजह से हमारे गोल्ड है जो लगा हुआ डिस्प्ले में ये सारा खराब होता है, ब्लैक हो जाता है। हीट पड़ने से ना कोई गोल्ड बनता भी ये हीट पे कलर इसका गोल्ड खराब होता है। सारा दिन धूप में ये कस्टमर वगैरह भी दुकानदार भी बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है धूप की वजह से इस बाजार में। मुजाहिरीन का कहना है कि सराफा बाजार की तरपालें जिस तरह उतारी गई थीं उसी तरह वापस लगाई जाएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। पिपला में रेलवे मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए मैदान में आके चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक इकराम कुंदी की क़यादत में रेलवे मजदूर सिरापा एहतजाज। पिपला के इलाके लोको शेड कुंदिया में प्रेम यूनियन रेलवे के मुलाजमीन अपने हकूक के लिए सिरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी रैली में रेलवे मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मजदूर भाई भाई के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने रेल मजदूरों के हकूक सुलभ करने पर पेशावर डिवीजन के रेलवे अफसरान के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। तालबाजी है सर के अभी 88 अरब रुपए इसकी अर्निंग हुई है, उसके बावजूद भी अगर पीएलए के सप्लीमेंट है तकरीबन 50,000 तो 50,000, तो ये मतलब है कि उसके बावजूद भी अदा नहीं कर रहे और न ही कोई मजदूर को अपना हक दे रहे हैं इतना कुछ होने के बावजूद, और खास तौर पे पेशावर डिवीजन में हमें बहुत नाराजगी। प्रेम यूनियन के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक अकरम कुंदी, ख्वाजा नजमुल हसन और मलिक मेहताब कुंदी का कहना था कि रेलवे पेशावर डिवीजन के अफसरान ने हमेशा मजदूरों के हकूक पर डाका मारा है। हर दौर में रेल का पहिया रवा दवा रखने वाले मजदूरों के हकूक का इस्तेहसाल किया गया। रेलवे इंतजामिया ने अरबों रुपए की वसूलियाँ की, लेकिन अभी तक PLA मुलाजमीन के सप्लीमेंट्री बकाया जात की अदायगी नहीं की। रेलवे के जो हालात हैं इस वक्त, तो सारा ठेकेदारी निजाम चल रहा है, रेलवे को न पास अलाउ है प्राइवेट ट्रेनों में, और जहाँ देखो मतलब रेलवे के हर किस्म की हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मजदूर पे अगर मसाइल पे बात करें तो मसाइल तो खत्म ही नहीं होंगे। मुकर्रीन का कहना था कि रेल से वाबस्ता मजदूरों और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी नहीं बनाया गया। रेलवे कॉलोनी में दिन ब दिन चोरियां जोर पकड़ती जा रही हैं। रेल इंतजामिया और पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं होती। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पर गौर न किया गया तो रेल का पहिया जाम कर देंगे। कैमरा टीम के साथ अताउल्ला शाहीन, रोही, पिपला। दिन पनाह में THQ अस्पताल की तामीर का मंसूबा ताखिर का शिकार। RHC को तोसी देकर 9 करोड़ 63 लाख की लागत से अस्पताल को 1 साल में मुकम्मल किया जाना था। ठेकेदार की अदम दिलचस्पी के बायस 2 साल बाद भी अस्पताल की तामीर मुकम्मल न की जा सकी। दायरा दीन पनाह में THQ अस्पताल की तामीर का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। RHC को तोसी देकर THQ अस्पताल बनाने का मंसूबा 9 करोड़ 63 लाख की लागत से मार्च 2022 में शुरू किया गया। 50 बेड का अस्पताल मार्च 2023 में फंक्शनल होना था, मगर 2.5 साल गुजरने के बावजूद ताहाल अस्पताल का तामीराती काम जहाँ के अस्पताल का मंसूबा ताखीर का शिकार होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। इलाज और मुआवजे के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता है। आपने कम से कम जो है ना 9 करोड़ 63 लाख की खती रकम से बनाया गया था ये अस्पताल, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं, अभी तक जो है ना ये मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं वो दूर दराज इलाके में जो है ना अपने इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। हमारा वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खुदा इस अस्पताल को फंक्शन किया जाए ताकि जो अवाम है दूर दराज इलाकों से जो है ना यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सके। शहरियों का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत ने सेहत सहूलियात की फराहमी के दावे तो बहुत किए हैं, मगर दायरा दीन पनाह का अकलौता अस्पताल 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी फंक्शनल न किया जा सका। जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो पंजाब के हवाले से, सेहत के हवाले से जो नारे लगाए जाते थे बुलंदो बांग, वो जनूबी पंजाब के अंदर जो है ना वो यहाँ पर नहीं नजर आते कि कहाँ पर जो है ना इस तरह के मामला तय हुए हैं इनके। जनूबी पंजाब के अंदर ये कोटदू की जो सरजमीन है, यहाँ पर एक मंसूबा जो तकरीबन 1 साल की मुद्दत के अंदर तकमील को पहुँचना था, अब 3रा साल हो गया। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि दायरा दीन पनाह का अस्पताल जल्द मुकम्मल करके फाल किया जाए ताकि इन्हें सेहत की सहूलियत घर के करीब मिल सकें। कैमरामैन वकार खंड के साथ आरफ बलोच, रोही न्यूज, दायरा दीन पनाह। बहावलपुर में पाकिस्तान सराइकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। डॉक्टर नकबा ताज गंगा का इजलास की सदारत करते हुए कहना था कि हुक्मरान सराइकी अवाम और खित्ते का मुसलसल इस्तेहसाल कर रहे हैं। पाकिस्तान सराइकी पार्टी सराइकी खित्ते के अवाम को हकूक दिलाने के लिए मुतहरिक। इस हवाले से पाकिस्तान सराइकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास बहावलपुर में हुआ। डॉक्टर नकबा ताज लंगा ने इजलास की सदारत की। इस मौका पर उनका कहना था कि हुक्मरान सराइकी अवाम और खित्ते का मुसलसल इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो मुनासिब अमल नहीं।
सराइकी इलाके का इस्तेसाल जो पिछले कई सालों से चल रहा है, सराइकी पार्टी का मिशन यही है कि हम अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे और जिस तरह बैरिस्टर लांगा साहब ने पुरअमन जिद्दोजहद और प्रोटेस्ट किया वो हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान सराइकी पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर अंसारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियां सराइकी अवाम को हकूक देने की बात तो करती हैं मगर देता कोई नहीं। 14 अगस्त के बाद इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। आज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास बिलखसूस इसलिए बुलाया गया है कि पार्लियामेंट में जितनी जमातें हैं इन सब जमातों ने सराइकी वसेब पर सूबा को अपने मंशूर में रखा हुआ है और कोई ना कोई इन्होंने आईनी कानूनी जो है वो पेशरफ्त की हुई है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में 13 अजला पे दो तिहाई अक्सरियत से बिल पास कराए। जो नून लीग है उन्होंने कहा कि हम 2 सूबे बनाएंगे। पिछले दिनों हमने रहबर सराइकिस्तान कॉन्फ्रेंस में एक एलामिया जारी किया है 14 नुकाती, जिसमें हमने तय डेडलाइन दी है 14 अगस्त की पार्लिमानी जमातों को कि आप 14 अगस्त से तक जो है वो पार्लियामेंट में सराइकी वसेब पर सूबे का बिल ले आएं। अदरवाइज हम सारी जमातें मिलकर इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगी, धरना देंगी। इजलास में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान का कहना था कि हुक्मरान होश के नाखून लें और सराइकी खित्ते के अवाम को उनके हकूक दें। अगर इस खित्ते के अवाम को हकूक फराहम न किए गए तो हुक्मरानों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन शाह सिकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर।